کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں علامہ امین شہیدی صاحب، جو پاکستان کے مشہور اسکالر ہیں، اور ابھی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ایک فتویٰ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے تمام لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیا تھا جنہوں نے انجینئر صاحب پر گستاخی کے الزام لگائے تھے. اور علامہ امین شہیدی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. تو اس حوالے سے جو ابھی حال ہی میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ایک انجینئر صاحب کے حوالے سے ایک فتویٰ آیا تھا، اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کریں گے. تو بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے. بہت شکریہ علامہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ. علامہ صاحب ابھی حال ہی میں آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب لگ بھگ 1 مہینے سے گرفتار ہیں، جیل میں ہیں، اور وہ ایک ایسی شخصیت ہے پاکستان کے اندر کہ جو نہ صرف فرقہ پرستی کے خلاف بات کرتے تھے بلکہ مذہبی طبقوں کے اندر جو انتہا پسندی ہے، شدت پسندی ہے، اس کی بھی پرزور مذمت کرتے تھے، اور ایک طرح سے اتحاد امت کے لیے بہت کام کرتے تے. لیکن ایک ایسا شخص جو کہ اس طرح کا اچھا کام کر رہا ہو، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے گستاخی کا فتویٰ لگا کر اور ان کو 295C کے تحت جیل میں ڈلوا دینا، تو یہ سب چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. تو آپ اس پوری کی پوری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس پورے سین کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، علمی دنیا میں مباحثے علماء کے درمیان ہوتے رہتے ہیں، اور پورے تاریخ میں نبی کریم سے لے کر آج تک صحابہ کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی، اور بعد کے ادوار میں بھی علمی موضوعات پر، فکری موضوعات پر، نظری اور نظریاتی موضوعات پر اختلاف کا ہونا اور ان اختلافات کی بنیاد پر اہل فکر و نظر کا کئی گروہوں میں تقسیم ہو جانا ایک نیچرل پروسیس ہے جو آج تک جاری ہے. جہاں تک مرزا محمد علی صاحب کا تعلق ہے، ظاہر ہے ان کو میں ایک عرصے سے جانتا ہوں، وہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہیں. وہ نظریاتی ابحاث میں اور تاریخ کے حوالے سے اور بر صغیر میں موجود مسالک کے درمیان جتنے بھی موضوعات باعث اختلاف ہیں، ان موضوعات کے حوالے سے ظاہر ہے ایک عرصے سے دھڑلے سے بول رہے ہیں اور بلا روک ٹوک بول رہے ہیں. منطقی انداز میں وہ قرآن سے، سنت سے اپنے فہم کے مطابق دلائل پیش کر رہے ہیں. لہذا ان پر یہ اعتراض تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہم پر یا ہمارے نظریات پر اعتراض کیوں کیا اور ہم سے اختلاف کیوں کیا. ہاں، ان کی روش کے اعتبار سے، ان کے طور و طریقوں کے اعتبار سے، ان کے نظریات کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ میں یا کوئی اور ان سے متفق ہوں. جس طرح سے ان کو حق حاصل ہے، اسی طرح سے مجھے بھی ان سے اختلاف کا حق حاصل ہے. لہذا بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن میں ان کی رائے میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میں ان سے شدید اختلاف کرتا ہوں. لیکن کیا اس اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی توہین کروں، ان پر الزامات لگاؤں اور ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کروں، ان کے خلاف سازشیں کرنے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. یہ نہ کوئی عقلی طریقہ ہے، نہ کوئی منطقی طریقہ ہے، نہ ہی دین کی اخلاقیات ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے. جہاں تک مرزا محمد علی صاحب کا تعلق ہے، وہ چونکہ دھڑلے سے بولتے ہیں، دبنگ انداز میں بولتے ہیں، اس کے اکثر اوقات ان کے لب و لہجے میں سختی ہوتی ہے، الفاظ کے چناؤ میں بے احتیاطی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سامنے والے کا دل ہو سکتا ہے دکھتا ہو. لیکن کمزور بات وہ بالعموم نہیں کرتے. بالعموم بعض جگہوں میں ان کے فہم کا قصور ہے، کوئی چیز ان کو سمجھ نہیں آئی یا غلط سمجھ آئی تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا. تب ہونا یہ چاہیے کہ جہاں پر ایسی کوئی صورتحال پیش آئے، میں مجھ جیسا کوئی اور فرد وہاں پر دلائل کے ساتھ ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے. اس کی گنجائش بھی ہے اور کھلی اجازت بھی ہونی چاہیے.
जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर वजूद में आई, उसमें अगर हम माजी देखें तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उलमाए कराम के पास बिलउमूम उनके उन खास अफकार और नजरियात का जवाब देने के लिए मैटर मौजूद नहीं था। इसलिए उनके हवाले से खास किस्म की बेचैनी और एतराजात और उन एतराजात के नतीजे में दिल में कीना मौजूद था, जिसका इजहार इस मौके पर बाज मौलवी साहिबान ने किया और फिर उसी मौके से फायदा उठाया गया, एक अवामी प्रेशर बिल्डअप किया गया और उस प्रेशर के नतीजे में उनको हिफाजती तहवील में लिया गया। फिर उसी हिफाजती तहवील में अवामी इज्तिमा का खौफ दिलाकर और मोब को, अवाम को मोबिलाइज करने की धमकी देकर और सड़कों को अवाम से भरकर उनके खिलाफ फजा बनाने के हवाले से एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करके उनके खिलाफ FIR कटवाई गई। और उस FIR में जो चीजें सामने आई वो अपने वजन के एतबार से, दलील के एतबार से, मंतकी एतबार से, शरई अहकाम के एतबार से कोई भी ऐसा वेट और वजन नहीं रखता या वो दलाइल वजन नहीं रखते जिनकी बुनियाद पर उनके खिलाफ FIR कटे। और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अंदर भी जिस फजा में उनके खिलाफ इस तरह की एक कमेंट या इस तरह की एक तहरीर लिखकर उसको माशरे के अंदर फैलाया गया, वो भी उसी प्रेशर का नतीजा और फिर बाज उलमाए कराम के दिलों में मौजूद उनके लिए जो मनफी जज्बात और एहसासात थे उनका इजहार था। इसलिए मैं बावजूद इसके कि उनके बहुत सारे अफकार से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, उनके बहुत सारे एतराजात को मैं उनकी नाफहमी या गजफहमी या उनको सही दलाइल न मिलने पर महमूल करता हूँ और समझता हूँ कि अगर उन तक सही और दुरुस्त दलाइल पहुंचे तो वो अपने उन अकायद या अफकार या आरा से शायद वो रिव्यू कर लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अगर खिलाफ इंसाफ, खिलाफ अदल कटहरे में खड़ा किया जाए तो वहां पर मैं अपने अंदर मौजूद उन मनफी जज्बात का सहारा लेकर अखलाकियात को पामाल करूं, अदल और इंसाफ के उन मेयारात को पामाल करूं और बदला उतारने के लिए उनको न सिर्फ मतकून करूं बल्कि उनके खिलाफ उस महज आराई का हिस्सा बनकर चंद इल्जामात अपनी तरफ से भी उन पर आयद करके उनको मजीद मुश्किलात में डालने का सबब बनूं। ये बहरहाल गैर अखलाकी रवैया है, गैर इस्लामी रवैया है और दीनी अखलाक, दीनी उस्लूब में इस रवैये की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बड़ी अच्छे तरीके से आपने बताया कि हमें हर किसी को इख्तलाफ का हक़ देना चाहिए, लेकिन जो ये इस वाली सिचुएशन है कि जहाँ पर एक मॉब को इकट्ठा करके प्रेशराइज़ करके पहले उनको हिफाजती तहफ़ील में लिया गया, उसके बाद फिर 295C उनके ऊपर कटवाई गई, ये बड़ी संगीन बात है। इसके हवाले से मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा कि चूँकि आप भी पाकिस्तान की एक ऐसी कम्यूनिटी से बिलोंग करते हैं जिस पर अक्सर इस तरह के फतवे लगाए जाते थे और हमें भी बचपन में ये शिया काफिर के नारे नाउज़ुबिल्लाह बताए जाते थे, तो इसके हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि अगर इस तरह से मॉब इकट्ठा करके किसी के भी ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके तौहीन रिसालत के क़वानीन का गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर तो हमारी सोसाइटी के अंदर इंतशार फैल जाएगा। तो इस तरह तौहीन रिसालत के क़वानीन का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है आज, तो इसको कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे हम इसको चेक और बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, इसके हवाले से थोड़ा सा इसके माजी में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जब जहाद के नाम पर अमरीकियों ने अपना एक हदफ पाने के लिए मजहबी तबकात को इस्तेमाल किया, उस दौरान में शिद्दत पसंदी को एक ऐसा फ़रोग़ हासिल हुआ जिसके नतीजे में तकफीरी फिक्र रखने वाले अनासिर को खुलकर अपने मुखालिफिन के लिए मैदान हमवार करने का मौका मिला, चाहे वो फिक्री हवाले से हो, प्रोपेगेंडे के हवाले से हो या अस्करी हवाले से। इस एतबार से हमारे माजी के तकरीबन 40 साल बड़े ही सख्त, तल्ख और पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से और उम्मत मुस्लिमा के हवाले से बड़े ही तल्ख गुजरे हैं और उसमें रियासती पॉलिसी भी शामिल रही है और रियासत की सरबराही में, रियासत की पुश्तीबानी में इस तरह के अफकार को प्रमोशन मिलती रही है। ये जो 295C के कानून की बात है, ये कानून भी उस फजा में
अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए और उनको प्रेशराइज करने के लिए, उनको दीवार से लगाने के लिए इस तरह के कवानीन बनाए गए। गोया ये कानून भी पाकिस्तान की जरूरत नहीं था, बल्कि उस तरह की फजा बनाई गई और उसके नतीजे में इस तरह का कानून भी क्रिएट किया गया। वरना आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क है आलम इस्लाम का। आलम इस्लाम में बड़े बड़े ममालिक हैं, अहम ममालिक हैं। सऊदी अरब, जिसको हम हिजाज मुकद्दस की सरजमीन कहते हैं, इस्लाम वहां से आया, वहां पर इस तरह का कोई कानून आपको नहीं मिलता। ईरान में इस तरह का कानून आपको नहीं मिलता। अफगानिस्तान में हत्ता इस तरह का कोई कानून आपको नहीं मिलता, जबकि कट्टर मुसलमान है और हमसे शायद ज्यादा इस्लाम के दावेदार अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। यमन में, इराक में, लबनान में, कुवैत में, यूनिस में, आपको बांग्लादेश में, फर्ज करें इसी खित्ते के अंदर इस तरह के कवानीन आपको नहीं मिलते। अरब खित्तों में इस तरह के कवानीन नहीं मिलते, न इस तरह की तौहीन के ऐसे वाकयात मिलते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इस तरह का माहौल वहां पर क्रिएट नहीं हुआ। यहां पर रियासत की सरबराही में पुश्तीबानी के साथ जब शिद्दत पसंदों को एक माहौल मिला तो उन्होंने अपने मसलकी उस तअस्सुब के इजहार के लिए और अपने मसलकी मुखालिफिन को दबाने के लिए इस तरह के कवानीन बनवाए। और वो कवानीन सियासी हुकूमतों ने इसलिए कबूल किए कि उनके वोट्स इनको चाहिए थे। अब चले कानून बन गया, लेकिन जब कानून बना तो उस वक्त भी खौफ यही था कि इस कानून का इस्तेमाल गलत किया जाएगा। दुनिया में एक अक्ली तरीका है कि अगर कोई शख्स किसी कानून के गलत इस्तेमाल के नतीजे में किसी पर इल्जाम लगाकर उसको कटहरे में खड़ा करता है और वो शख्स बेगुनाह साबित होता है और इल्जाम लगाने वाला उसकी मुजरिमाना ज़हनियत सामने आती है, तो कवानीन इस तरह के बनाए जा चुके हैं दुनिया भर में कि वही कानून उसके खिलाफ इस्तेमाल हो, उसको जेल में डाला जाए जिसने इस कानून को गलत इस्तेमाल किया था। जब पाकिस्तान में 295C का कानून बनाया जा रहा था तो उस वक्त यही कहा जा रहा था कि नहीं, इस कानून को हम गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उसका रास्ता कैसे रोकेंगे? आला तरीन सतह पर, कमिश्नर की सतह पर, आईजी की सतह पर, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस के अफसरान की सतह पर तहकीक होगी और उसके बाद अगर कोई शख्स मुल्जिम करार पाया तब उसके बारे में FIR काटी जाएगी, लेकिन वो भी बहुत एहतियात के साथ। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि मॉब के हाथ में है सब कुछ, और मॉब किसके हाथ में है? शिद्दत पसंद मौलवियों के। लिहाजा जिस मुल्क के अंदर खुद कानून के बनाने में, कानून की तश्कील में, कानून को पास कराने में बदनीयती हो, तो उस मुल्क में उस कानून का इस्तेमाल भी बदनीयती पर मबनी ही होता है। लिहाजा हमने इस कानून का इस्तेमाल आज तक जायज तौर पर अगर इस्तेमाल होते हुए 1% देखा है, 2% देखा है, तो 98% हमने इसका गलत इस्तेमाल देखा है। जिसकी एक मिसाल आज हमारे सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की सूरत में है। सारी दुनिया को पता है, हर शख्स ये बात समझता है कि FIR गलत कटी है। हर शख्स इस बात को जानता है कि FIR में जो मुद्दा है वो खुद गलत है। हर शख्स ये बात जानता है और समझता है कि इस तरह की कोई बात किसी के हवाले से नकल किया जाना न सिर्फ ये कि कुफर का बायस नहीं है, तौहीन का बायस नहीं है, उस कानून के इतलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब आप शिद्दत पसंदाना मुआशरे के अंदर शिद्दत पसंदों के हाथों यरगमाल बनते हैं तो फिर तमाम आपके सामने मौजूद हर्डल्स और रुकावटें खत्म हो जाती हैं और इस तरह के कानून या कवानीन बेगुनाहों के खिलाफ इस्तेमाल होने लगते हैं। और आज भी यही हुआ है। लिहाजा मैं तो ये समझता हूँ कि इस पर उलमा को सोचना चाहिए, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को सोचना चाहिए, रियासत को सोचना चाहिए कि अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ इस तरह के किसी कानून का गलत इस्तेमाल करके उसको अजियत में, तकलीफ में मुब्तला करता है और मुआशरे के अंदर एक तलातुम बर्पा कर देता है, तो ऐसा करने वाला जब बदनीयती के साथ ही सारा काम कर रहा है और जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा था वो बेगुनाह है, तो फिर उसी कानून का इतलाक ऐसा करने वाले शख्स पर होना चाहिए जिसके नतीजे में उसको जेल में डालकर उसको बताना चाहिए कि तुमने कानून का गलत इस्तेमाल करके मुआशरे के अमन को तबाह किया है। लेकिन यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। मुश्किल ये है
لہذا اس مشکل کو حل کرنے کی ضرورت ہے علماء کرام کو بھی, اہل علم و دانش کو بھی, اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. اس وقت ایک محمد علی مرزا ہے, لیکن کل کوئی سرفراہ اٹھ سکتا ہے, بخاری پر 1000 اعتراضات کرے اور موب لے کر نکلے اور کہے کہ بخاری کو آگ لگا دو, اس لیے کہ اس میں یہ توہین ہے, یہ توہین ہے, یہ توہین ہے. کوئی سرفراہ ہو سکتا ہے خود قرآن کریم کے حوالے سے ایسا کوئی دعویٰ کرے کہ قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں جو کفر کے اور کافروں کے نظریات کو بیان کرتی ہیں. جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد کو بیان کیا ہے. مشرکین کے عقائد مسلمانوں کے عقائد تو نہیں ہے, کافرانہ عقائد ہے. اللہ نے بیان بھی کیا اور ان کو رد بھی کیا. اب اگر اللہ نے بیان کیا اور رد کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنا بھی درست ہے اور رد کرنا بھی درست ہے. اب اگر آپ اس کو بیلنس نہیں کریں گے اور بیان کرنے کے جرم میں اگر کسی کو مجرم ٹھہرائیں گے تو پھر قرآن کو بھی نعوذ باللہ مجرم ٹھہرانا پڑے گا, جو کہ غلط ہے. احادیث کی دنیا میں بھی یہی مسائل پیش آئیں گے, اسی طرح سے تاریخ کی دنیا میں بھی یہ مسائل پیش آئیں گے, آپ کے جمعے کے خطبات میں بھی یہ مسائل پیش آئیں گے, مناظروں کے میدانوں میں بھی یہ مسائل پیش آئیں گے. کوئی ایسا علمی ماحول آپ اپنے معاشرے کے اندر اس فضا میں کریٹ کر ہی نہیں سکتے جہاں پر آپ دین کی کھلی اور آزادانہ تشریح کر سکیں. ہر شخص دوسرے کو مطعون کرے گا, اس کے خلاف FIR کاٹے گا کہ اس نے میرے ان افکار کی یا میرے ان نظریات کی توہین کی ہے, اس لیے اس پر 295C لگا دی جائے. لہذا یہ ایک لامتناہی ایک ایسا دروازہ کھلے گا جس کا سدباب کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہوگا. لہذا اس کو پہلے ہی قدم پر روکنا چاہیے اور قانون کا استعمال درست طریقے سے ہونا چاہیے, اور جو اس کو غلط استعمال کرتا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے. جی بالکل علامہ صاحب, جو آپ نے تجویز بتائی ہے کہ جو اس طرح سے قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن جو آپ نے یہ بات کی کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے جو انتہا پسند ہے وہ پریشرائز کر کے موب اکٹھا کر کے دوسرے کے خلاف اس طرح کے قوانین کا اطلاق کر دیتا ہے, لیکن ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ جو ریاستی جو ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل, ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی ایک باعث تعجب ہے کہ انہوں نے بھی باقاعدہ انہی انتہا پسند مذہبی گروہوں کو سپورٹ کیا اور اس طرح سے انجینئر صاحب کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا جو کہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا, کیونکہ آلریڈی سوشل میڈیا پر آپ نے اپنا فتویٰ جاری کیا. اس کے علاوہ مفتی طارق مسعود صاحب, غامدی صاحب, ڈفرینٹ علماء کرام نے انجینئر صاحب کے حق میں فتوے جاری کیے تھے, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ریاستی سطح پر بھی جو ریاست کے اندر علماء کرام ہیں وہ بھی اس طرح کے قوانین کا اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تو اس سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ جو ریاست میں اپنی اتھارٹی چلا رہے ہیں وہ اس طرح کے قوانین کا استعمال کر رہے ہیں, بجائے یہ کہ ہم ان مذہبی گروہوں کو صرف نشانہ بنائیں جو کہ عموماً ہمارے سوسائٹی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہی ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل میں جو افراد ہیں وہ ظاہر ہے اسی پاکستانی معاشرے سے ہی منتخب شدہ افراد ہیں, انہی مدارس سے, انہی مساجد سے, انہی تنظیموں سے, انہی جماعتوں کی طرف سے. لہذا سوچ تو وہی ہے. جب سوچ وہی ہے تو پھر اب دیکھنا ہے کہ ان کو تکلیف کیا ہے. جب وہ انہی مدارس میں ہیں جن پر انجینئر محمد علی مرزا اعتراض کرتے تھے, انہی افکار کے حامل ہیں جن پر انجینئر مرزا کو اختلاف تھا اور جن کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے, تو پھر میرا خیال ہے طبیعی طور پر نیچرلی ان کے دلوں میں محمد علی مرزا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ تھا اور نہ ہی ہونا چاہیے. البتہ جس منصب پر یہ لوگ موجود تھے اس منصب کا تقاضا یہ تھا کہ ریاست کی طرف سے ایک سوال پوچھا گیا, اس سوال کا آپ جواب دیں کہ آیا یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا. لیکن اس جواب کی بجائے اپنے ان حدود سے نکل کر اسلامی نظریاتی کونسل نے مزید چند الزامات لگا کر انجینئر مرزا کو مزید زیادہ بند گلی میں دھکیلنے کی کوشش کی. تو یہ وہی فرقہ وارانہ ذہنیت کی عکاسی ہے جو اس معاشرے کے اندر پروان چڑھتی ہے, اور ہمارے یہ علماء کرام بھی اسی معاشرے کا حاصل ہے. جہاں تک میں نے سنا بعض ممبران سے جو اس کونسل کے اجلاس میں موجود تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ 2-4 ایسے افراد تھے جو شدت کے ساتھ بھڑکے ہوئے تھے اور ان کے غصے, غضب اور جذباتی گفتگو کے مقابلے میں باقی شرفاء خاموش ہو گئے, اور نتیجتاً اس طرح کی
एक तहरीर लिखी गई जिसमें मोहम्मद अली मिर्जा को निशाना बनाया गया। लेकिन अगर इन्हीं उलमा को एक एक करके मीडिया के सामने लाया जाए और उनसे कहा जाए अब आप फेस करें और हमारे सवालों का जवाब दें, तो उनमें से एक भी जवाब नहीं दे सकता, इसलिए उसके पास कोई दलील है नहीं। लिहाजा ये एक अफसोस का मकाम है कि उस मसनद पर जो मसनद हमें रसूल करीम के अखलाक को बयान करने की जिम्मेदारी सौंपता है, वो मसनद जो हमें शरई कवानीन की दुरुस्त तशरीह और तबयीन करने की जिम्मेदारी सौंपता है, वो मसनद जहां पर हम खिलाफ शरीयत कवानीन को अलग करके उनको हाईलाइट करते हैं, ये खिलाफ शरीयत है, इसको लागू न किया जाए या इसको पास न किया जाए, एक ऐसे फोरम में खुद एक ऐसा फतवा या एक ऐसी तहरीर लिखी जाए जो खुद शरीयत की रूह के भी खिलाफ हो, शरीयत के मिजाज के भी खिलाफ हो और शरई अहकाम के भी खिलाफ हो। बहरहाल ये एक अफसोस। जी बिल्कुल अल्लामा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये उलमाए किराम भी जो रियासत के इदारे के अंदर हम देखते हैं, ये भी उसी मदारिस की आउटपुट हैं। और मुझे हैरानगी भी होती है कि किसी ज़माने में हम भी निफाज़ दीन और निफाज़ शरीयत की बातें करते थे। अब इस तरह के उलमाए किराम अगर हमारी रियासती इदारों के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि जो इख्तिलाफ़ राय को भी बर्दाश्त ना कर सकते हों और अपनी ज़ाती मफादात के लिए इस तरह के क़वानीन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर तो बड़ी ही एक कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाएगी कि जो ये अपनी रियासत कायम करेंगे उसमें हम जैसे माइनॉरिटीज़ को तो बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं मिलेंगे, हमें तो इख्तिलाफ़ राय का स्पेस भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से इस्लाह होनी चाहिए मुआशरे की और उसके बाद इस तरह की बातें होनी चाहिए। देखिए, इस हवाले से एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आज के मदारिस आज के ज़माने के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरते। आम तौर पर हमारे मदारिस का मिजाज हमेशा यही रहा कि हुक्मरानों की मर्जी के मुताबिक वो चलते रहे, हुक्मरानों की मर्जी के मुताबिक फतवे मुरतब करते रहे, हुक्मरानों की हुक्मरानी को मजबूत करने के लिए एक पिलर के तौर पर वो अपना रोल अदा करते रहे। आज भी कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है। इसलिए जब रियासत ने रोका तो ये लोग रुके, लेकिन जब रियासत ने सपोर्ट किया तो ये उस इंतहा तक गए कि मुआशरे को आग में झोंक दिया। ये बहरहाल हमारे मजहबी तबकात का एक बहुत बड़ा अलमिया है। लिहाजा इस कैफियत और इन सिफात के साथ अगर आप इस्लाम को माशरे के अंदर नाफिज करना चाहें तो ये अल्लाह वाला इस्लाम तो नहीं होगा, कुरान वाला इस्लाम का नहीं होगा। ये इस्लाम मदरसे का होगा, रसूल पाक का नहीं, कुरान का नहीं। और जो कुरान और रसूल पाक का इस्लाम ना हो, उससे तो फिर मुआशरा बनने की बजाय मजीद बिगड़ता है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने बड़ी वजाहत के साथ इस पर अपना दो टोक मौके बयान किया। मैं एक इल्मी मसले के ऊपर आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगा। जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का जो उनकी राय थी, उन्होंने इंजीनियर साहब के केस के हवाले से गुफ्तगू फरमाते हुए ये बात की कि अगर आप नकल कुफ्र भी किसी का नकल करते हैं तो वो भी बतौर रद्द, बतौर इनकार ही किया जा सकता है, ना कि तायद के तौर पे आप किसी के कुफ्र या नकल को नकल कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने भी अपने फतवे के अंदर बड़ी तफसील से कुरान पाक की वो सारी आयात वहाँ पर लिखी थी जहाँ पर नकल कुफ्र बयान हुआ था। तो क्या इस तरह की जो शराइत उलमाए किराम की तरफ से आयद की जा रही हैं कि हाँ इन पैरामीटर्स को क्वालिफाई करने के बाद आप नकल कुफ्र नकल कर सकते हैं, तो क्या ये कुरान और सुन्नत में बयान हुई हैं या फिर उलमाए किराम की खुद साख्ता ये शराइत हैं? देखिए, कुरान करीम पर जब आप गौर करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन के अकायद को बयान किया है कि वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसलन, कुफ़ार ये कहते हैं कि आप रसूल नहीं है। अच्छा, जब ये जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में नकल किया तो उसके बाद अगले ही जुमले में इसको रद्द भी किया, वल्लाहु यशहद, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाही देता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो शख्स भी गवाह है जिसके पास इल्म किताब है। तो गोया इस तरह की जितनी भी आयात हैं जहां पर रसूलों की तौहीन हुई और कुफार की तरफ से हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बयान भी किया और उनको रद्द भी किया। इस हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नकल कुफ्र रद्द करने के लिए बिल्कुल दुरुस्त है, होना चाहिए और उसको रद्द भी करना चाहिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के केस में मोहम्मद अली मिर्जा ने अगर मसीहियत के हवाले से कोई अकीदा नकल किया है
मसीहियत का अकीदा, उस अकीदे को मोरद इल्जाम ठहराया जा सकता है और उस पर एतराज किया जा सकता है, लेकिन ये कहना कि आपने नकल क्यों किया है, ये गलत है। और मोहम्मद अली मिर्जा भी जब उसको नकल कर रहे थे तो ये मुझ जैसा एक ऐसा फर्द भी फौरी तौर पर समझ सकता है कि उनका इरादा कतन ये नहीं था कि वो मसीही उस अकीदे की तायीद कर रहे हैं, ये कतन नहीं था, बल्कि वो वहां पर ये दलील पेश कर रहे हैं कि मसीहियत जो रसूल करीम को इस तरह से याद करती है, उस मसीहियत के अंदर अगर कोई बच्ची आती है तो उससे निकाह को मेरा इस्लाम जायज करार देता है। तो ये उस निकाह के जायज होने के लिए इस्लाम की वुसअत को उन्होंने बयान किया है, और उस वुसअत के ज़िम्न में उनके उस गलत अकीदे को भी एक गलत अकीदे के तौर पर बयान करके उस गलत अकीदे के रद्द अमल में हमारे दीन के उस पाकीज़ा और सॉफ्ट कॉर्नर को बयान किया है। लिहाजा ये खुद इस दलील पर पूरा उतरती है ये बात और उनका ये रवैया कि वो उसको रद्द कर रहे हैं, उसकी तायीद नहीं कर रहे हैं। लिहाजा जहां तक खुद इस केस का ताल्लुक है, इस पे न सिर्फ ये कि कोई जान नहीं है, ये महज इल्जाम है, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी बहुत ही कमजोर बात की है ये करके, और अपनी उस इल्मी हैसियत को अपने इस तहरीर के जरिए से खुद अपने हाथों मखदूश कर दिया है। जी बिल्कुल अल्लामा साहब, आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि जब भी तौहीन रिसालत के कवानीन की बात की जाती है तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो सवाल किया जाता है कि आखिर गुस्ताखी को डिफ़ाइन कैसे किया जाएगा। एक चीज़ जो कि आपका अक़ीदा हो सकता है कि मेरे लिए वो मायूब हो, मैं उसको बुरा मानता हूँ, तो क्या ये भी गुस्ताखी के ज़ुमरे के अंदर आएगी? मिसाल के तौर पे इंजीनियर साहब के केस को ले लें, उन्होंने अगर ईसाइयों के हवाले से ये बात की है और हमने बाकायदा अपनी न्यूज़ के अंदर उन ईसाइयों की वीडियोस भी चलाई हैं, फतवे भी दिखाए हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तानी ईसाई तो इस तरह की बातें नहीं करेंगे, लेकिन जो फ़ॉरेन के ईसाई स्कॉलर्स थे उन्होंने इस तरह की बातें की हैं जो इंजीनियर साहब ने बयान की हैं कि वो भी नाउज़ुबिल्लाह नबी सलाम को एंटी क्राइस्ट मानते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर भी वो तो अपना अक़ीदा बयान कर रहे हैं, तो क्या इसको गुस्ताखी पर मामूर किया जाएगा? यानी कि गुस्ताखी डिफ़ाइन कैसे की जाएगी कि कौन सी चीज़ गुस्ताखी है और कौन सी चीज़ जो है वो अपना अक़ीदा ही बयान हो रहा है? देखिए, गुस्ताखी उर्दू का लफ्ज़ है। हम जब अरबी मुतून में कुरान और सुन्नत में देखते हैं तो वहां पर हमें जो रास्ता नजर आता है वो ये है कि अगर मुशरिकीन अल्लाह के मुकाबले में बुत को दुरुस्त समझते हैं और अल्लाह को नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह गलत समझते हैं, तो वहां पर हमें कुरान ने उन मुशरिकीन का सर काटने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उनकी हिदायत के लिए उनकी अक्लों को झंझोड़ने का हुक्म दिया है। गोया वो अमली तौर पर अगर देखा जाए तो वो गुस्ताखी कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की, लेकिन अल्लाह उस गुस्ताखी को भी ये नहीं कह रहा कि इसके नतीजे में जाके उनका सर कलम कर दो। यही कैफियत रसूल करीम की है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनके मनसब नबूवत और रिसालत के हवाले से जो कुफार है वो तो नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं भाई ये रसूल नहीं है। जब वो नहीं है, नहीं मानते, तो हमारी इस्लाम में ये गुस्ताखी कहलाएगी। लेकिन आया इस्लाम ने इसको गुस्ताखी करार देकर मुझे ये इजाजत दी है कि मैं उसकी गर्दन उतारूं? हरगिज नहीं, मुझे ये इजाजत नहीं मिली। लिहाजा जब हम कहते हैं गुस्ताखी, तो ये आपके मुआशरे की वो इस्तिलाह है जिसमें हमने ये शिद्दत बरी है, वरना दीन में कोई ऐसी इस्तिलाह मौजूद नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स मुसलमान होने के बाद इर्तिदाद इख्तियार करता है, मुसलमान होने के बाद मुसलमान है, एक अरसा मुसलमान रहा, उसके बाद वो मुर्तद हो गया और दीन से बाहर चला गया, उसके लिए फिर मुख्तलिफ किस्म की सजाएं और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल उसके लिए बयान किए गए हैं, लेकिन कुफार और मुशरिकीन के लिए तो नहीं। लिहाजा इन चीजों को इल्मी अंदाज में हल करने की जरूरत है। और जब हम कहते हैं गुस्ताखी, तो अगर अल्लाह की हो तब भी, रसूलुल्लाह की हो तब भी, अहलुल बैत की हो तब भी, और अगर सहाबा की हो तब भी, गुस्ताखी की तारीफ होनी चाहिए कि वो तारीफ क्या है। तारीफ जब तक ना हो, मेयारात उसके जब तक कायम ना किए जाए, उस वक्त तक आप किसी को मोरद इल्जाम ठहरा ही नहीं सकते एक कुल्ली जुमले की बुनियाद पर या लफ्ज की बुनियाद पर।
کہ بھئی گستاخی ہو گئی. گستاخی کیسے ہوئی ہے اس کا کسی کو نہیں معلوم. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ تعریف مکمل کریں گے کہ گستاخی کی تعریف یہ ہے، اس کے بعد آپ اس تعریف کی بنیاد پر کسی کے عمل کو پرکھیں گے کہ آیا اس کا یہ عمل گستاخی کی اس تعریف پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. ورنہ اگر آپ ہر اس چیز کو جو آپ کے میلانات اور آپ کے عقائد اور آپ کے مزاج کے خلاف ہو گستاخی قرار دینے لگیں تو پھر تو قیامت آ جائے گی بھائی. قرآن کریم میں صحابہ کے حوالے سے، امہات المومنین کے حوالے سے ایسی باتیں ہیں کہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جائے. قرآن میں پھر آدمی کہاں جائے؟ احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کے حوالے سے، خود نبی کریم کے حوالے سے نعوذ باللہ ایسی باتیں ہیں کہ آدمی سر پکڑ کر بیٹھ جائے. پھر کہاں جائیں؟ پھر کہیں گے یہ ساری گستاخی ہوئی ہے. اور اگر اس کو آپ گستاخی قرار دیں گے تو پھر نتیجتاً امام بخاری کو نشانہ بنانا پڑے گا، امام مسلم کو نشانہ بنانا پڑے گا، بڑے بڑے جو محدثین موجود ہیں، راویان حدیث موجود ہیں، ان سب کو نشانہ بنانا پڑے گا. اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ توہین کس چیز کا نام ہے، گستاخی کس چیز کا نام ہے. لہذا جب آپ قانون بناتے ہیں تو اس قانون کے بنانے سے پہلے جن عناوین کو آپ مقدس قرار دیتے ہیں ان عناوین کی وضاحت اور ان کی تعریف ضروری ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے بھی توہین اس کو کہتے ہیں، توہین یہ ہے، گستاخی یہ ہے، گستاخی کی تعریف یہ ہے. اگر توہین اور گستاخی معین ہو جائے کہ اس چیز کا نام ہے تو اس کے بعد آپ اس معیار کے مطابق باقی چیزوں کو پرکھیں گے اور اس کے مطابق پھر حکم لگائیں گے. جی بالکل علامہ صاحب، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہی تو سب سے بڑا لوپ ہول ہے توہین رسالت اور باقی بلاسفیمی لاز کے قانون کا، کہ وہاں پر ڈیفائن نہیں کیا گیا، تعریف نہیں کی گئی گستاخی کی. بہرحال بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے تھاٹس کو شیئر کیا. میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور آپ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں بھی اور علی بھائی کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وہاں پر بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو اپنے زبان میں رکھے. آمین آمین. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.